Hello everyone. So hope everybody joined. Is my voice audible? Can you leave a message on chat? Okay, okay. That's okay. Fine, fine. Thanks a lot. So here we are. So hey everyone, and a very warm welcome to everyone who are present here. So, as you know, we are going to have an event on Compose Camp today, uh, as a first event out of 4 events which we are going to conduct. And the most exciting part of this event would be that it would be like a collaboration of 4 colleges. So it will be very great. So we are going to have this session very interactive, and so you can give leave chats and you can ask questions during the event. So are you excited for the event today? Can you leave in the chat? Okay, okay. Right, right. Thanks a lot. Thanks for the responses. So you can yeah. So actually, what is compose camp? So compose camps are actually community organized events focused on how to build Android apps using Jetpack Compose. During these, attendees can get hands-on experience on how to use Jetpack Compose and how to build Android apps and like these things. So actually, what is Compose? So Compose is a modern way to develop UI on Android. So this would be the Compose, and today, as it is our first event, so we will be having introduction about Kotlin and how to install Androids and like this, and now the prerequisites of this. So it will be requiring basic computer literacy. So it will be very simple things like anything like you know about computer hardware, so that things. Now basic math skills like anything like you have done in from 6th to 12th, like those skills. So it would be like that, and then you would be requiring computer and headphones, that's obvious, and then a good internet connection, then Android devices and USB cable, that's simple. I guess everybody understand those things. So right. So next slide. Okay. So it would be like it will be very great compose camp. So the objectives, now the objectives about this event. So you will be building your first Android apps during the event. Then you would be setting up Android Studio on your computer. That's what I have said previously. Then you would be learning Kotlin language, then Jetpack Compose. Then you would be discovering the resources given by Google for yeah, for learning these things. So that's it. Then now I would request Ankit Kumar to come over here and give details about the collaboration of members. Hello, Ankit. Hello, Ankit. Are you here?
He is coming. Just a few seconds. Thanks, Aditya, Hello, everyone. for Am I understanding. audible now? Yeah, yeah, fine, Ankit. You can continue. Thanks. Okay. I would like to thank you first of all, Anirudh, to give me chance here to speak in between hundred of people. So, how was the day? Let me know in the chat box, everyone. Okay. So, I would like to introduce the collaboration detail here. So, this event is going to be a collaboration between four colleges, four GDSE communities. So uh, first off, community will be Google Developer Student Club, Punjabi University from Patiala, and second, the Google Developer Student Club, Rajki Engineering College, Bijnor. It is from Uttar Pradesh, and third one is Google Developer Student Club, National Institute of Technology, Goa, and fourth one will be Google Developer Student Club, Government Engineering College, Sheikhpura, which is in Bihar. So these all GDSC community came together to present uh, event which is currently going on this month from Google Developer Student Clubs only. So the event name you all know that this is Compose Camp. So Anirudh gave a simple introduction about Compose Camp. So I would like to also give a brief this introduction about Compose Camp. So Compose Camp is basically like a uh, library type, we can say. In We use Kotlin language. We use Kotlin language to build our Android applications. So basically, we use only Kotlin language. Jetpack is like a kit which will use less number of lines of codes, uh, from which we will be able to compile and make a better UI uh, for Android. So let me introduce our community's lead. So from Rajki Engineering College, Bijnor, the lead is Ankit Kumar. So it is myself only, and from uh, National Institute of Technology, Goa, it is Niranjan, and from Government Engineering College, uh, it is Komal, and from Punjabi University, it is Anirudh. So let me talk about the speakers who will be taking our session for the Compose Camp. So first speaker will be Komal Kumari, which is the GDC lead only of GDC Government Engineering College of Sheikhpura, and second will be Om Pawar, who is Compose Camp facilitator of GDSC and IT Goa, and third speaker will be Anirudh, who is Android development lead from GDSC REC Visioner, and the final Brahmjot Singh, who is technical head of GDSC Punjabi University Patiala. So these all four speakers will be taking all our session. This is our first introduction session in which we will be discussing about Kotlin basics and how to set up around our studio and other things. And after that, we will also have few more sessions in which uh, we will be letting you know how to create some UI and how to access the Google resources which will be provided to further to you, and also build up your Google Developer Student profile in from which while completing your uh, resources there will be given some pathways. So there will be some pathways provided by community yourself, by which completing every pathway you will be getting some badges. When you will compiling the any of pathways, then you have to attempt a quiz at the end of the pathway. While if you
get 70% marks in that quiz, then you will be able to earn badges, which will be added to your Google developer profile, and it will be very beneficial, as you can show that in our resume as well, which will by which everyone can able to know about your skills, that how proficient you are in this particular language. So these profiles will be these badges will be reflected to your Google Development student profile. And so uh, we can start now. And I would like to hand over the session to Brahmjot, who is technical head of Punjabi University, GDC. Brahmjot, you can join and take over the session. Brahmjot, are you available? Uh, just wait a second. He will be joining soon. Yeah, yeah, you're audible now. You can present your screen for the session. I am stopping my. Okay. You will be getting the. You will be getting your a Google form shared to you, in which you have to share your Google Developer profile link. You have to make it public. After that, also, if you are made a simple Android application, you have to also upload that. So while compiling all the things provided by you, we will be providing you the certificate of participation, and as well certificate of appreciation. So that's all from my side. So Brahmjot will take over the session now. Hello, Ankit. Is my Yeah, screen visible? yes, Can yes, you your just screen is confirm? visible. You have to share your Yeah, presentation. yeah. This presentation is showing, or No, no, not presentation is not showing. It's your Chrome it's is not showing. visible. Your Chrome is visible to me. Wait a second. Just wait a second. Uh, I guess I have made some issue. There was issue with Brahmjot not being the presenter. I have made him the presenter. I guess he could now do that. Wait a second. Okay, okay. Yeah, Ankit, it's visible. Right. Good evening, everybody. Am I audible? Okay. So here we are. We will begin with the introduction of the Kotlin. In which language you are comfortable with? Because I can speak only English or Hindi. Because my mother tongue is okay. So I'll be shifting to Hindi only. So इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन से हम स्टार्ट करेंगे आज पहला सेशन है
तो हम इसमें पहले सीखेंगे कॉटलिन लैंग्वेज कैसी है, उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और इसके बेसिक्स क्या है। अंकित, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं। कॉटलिन जो लैंग्वेज है ब्रेन्स के साथ बनाई गई थी, जो कि 2011 में सेटअप हुई थी। एक JVM प्लेटफॉर्म बेस्ड है, मतलब अगर आपके सिस्टम में अगर अपना JVM मशीन इंस्टॉल करी हुई है जिसका फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन, अगर कोई जावा प्रोग्रामर है उनको कंप्यूटर में प्री सेटअप्स होंगी, नहीं तो हम आपको सेटअप इसका भी बता देंगे। JVM पे सेटअप वैसे ओरेकल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हो सेटअप। JVM मशीन के ऊपर ये पूरी कॉटलिन लैंग्वेज रन हो जाती है। इसके लिए स्पेशल कंपाइलर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। जो भी प्री एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उनके लिए कॉटलिन पे शिफ्ट करना इज टोटली इजी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, ये एक स्टैटिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक मींस we have to initialize or and tell the type of the data we are storing in a variable. For example, if I'm storing a number, numeric data or a string data or any different type of data, I have to specify that. में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें कोई सेपरेट लाइब्रेरी सेटअप करनी पड़ेगी या सेपरेट लाइब्रेरी सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस यहाँ तक? ओके अंकित, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो कि अगर किसी ने ऑनलाइन अगर करनी है और अगर ऑफलाइन भी करनी है तो आपके जैसे VS कोड्स वगैरह है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपने VS कोड सेटअप नहीं करा हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कॉटलिन प्लेग्राउंड, वहाँ पे हम सारा कोड रन कर सकते हैं। ये टोटली ऑनलाइन है, नो कंपाइलर एंड ऑल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम बेसिक डेफिनेशंस पे आ गए हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ प्रोग्राम। सो प्रोग्राम जस्ट लाइक एनी ऑफिस और एनी इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम क्या होता है कि मेथड होता है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे जाते हैं कि आप इस सीरीज में ऐसे एक प्रोग्राम रन होगा। फॉर एग्जांपल एक एनुअल फंक्शन है स्कूल का, तो उसमें पहले ही एक सेटअप्स क्रिएट कर जाते हैं कि वो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम कैसे रहेगी, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस कैसे होगा, इसके बाद अगला प्रोसेस कैसे होगा, इसे कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हमारी सेकंड पॉइंट है कोड। कोड क्या है? वो एक स्टेप और स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है फन मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये क्या है? एक कोड है जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि एक प्रिंट हेलो करके मैंने स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराना है। उस मैंने उसको बताया है ये स्टेप्स है और इस तरीके से प्रिंट कराना है। अंकित, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब हम आते हैं कि मेन प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं। जो एक मेन हर प्रोग्राम में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेजॉरिटी जो कि है, जैसे फॉर एग्जांपल जावा या C++ और कॉटलिन, इनमें एक मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमारा कंपाइलर और एनीथिंग जो भी इनका रनर है, एग्जीक्यूटर है, वो एक एंट्री पॉइंट समझता है कि यहाँ से मेरा कोड रनिंग स्टार्ट है। घर के अंदर एंट्री पॉइंट किसी कोई भी, चाहे वो आउटसाइडर है या कुछ कोई भी है, उसको पता है कि घर के अंदर की एंट्री पॉइंट क्या है, मेन डोर। जैसे कि वहाँ पे हम कहते हैं मेन डोर, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी लैंग्वेज का कि हम उसमें प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि कंपाइलर को वो तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखेगा, उसको ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है। तो मेन फंक्शन उसके लिए ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट बनता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसमें मेन इंस्ट्रक्शन की बाइफर्केशन यहाँ पे स्टार्ट होंगी। ओके, सबको क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो अब हम बात करते हैं फंक्शंस पे। सो फंक्शंस क्या है? छोटे छोटे सेगमेंट्स है जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस लिख के छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, एक किसी भी
ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे हमें कोई काम कराना, डिफरेंट स्टेजेस ना हो, तो हमें कोई भी काम कराना हो ऑफिस में तो बहुत डिले होगा और बहुत कंजेस्टेड सिस्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस Kotlin में कैसे क्रिएट करना है वो हम सीखते हैं। अंकित, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमारा फंक्शन जो है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फन कीवर्ड है जिसके यूज में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कि हमें डिफाइन करना पड़ता है कि फंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हम लिखेंगे पहले फन, फिर उसके बाद एक नेम आएगा जो भी हम फंक्शन को नेम देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन ऐप बना रहा हूँ, तो मैं एडिशन वाले पार्ट के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ फन ऐड। उसके बाद हम जाएंगे पैरेंथेसिस जो कि हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, उसके बाद कोलन, उसके बाद आएगा हमारा रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन एडिशन वाला फंक्शन लिखा हुआ है, वो प्रोसेस कर रहा है डाटा को एडिशन करके, उसके बाद वैल्यूज रिटर्न करनी है फ्रॉम मेन फंक्शन। तो उसमें क्या करेगा, हम रिटर्न टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो एडिशन वाला फंक्शन है तो उसकी रिटर्न टाइप इंट होगी, अगर कोई और फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद आते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी आती है फंक्शन की, उसके साथ ही हमारा नीचे आता है रिटर्न स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारे ब्रेसेस क्लोज होते हैं और ये हमारी फंक्शन की बॉडी होगी क्रिएट। ओके, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फन डिस्प्ले इंट्रोडक्शन कर्ली पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्रिंट एलन एक प्रिंटिंग फंक्शन है जिसमें हम आउटपुट प्रिंट करते हैं, आई एम ब्रह्मजोत एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। सो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, आई एम ब्रह्मजोत एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो ये हमारी आउटपुट होगी और ये हमारा फंक्शन होगा। इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि कोलन और रिटर्न टाइप नहीं स्पेसिफाई करें। अगर हमारा फंक्शन नॉन रिटर्निंग टाइप है, मतलब अगर हम उससे कोई वैल्यू ले नहीं रहे वापस, तो हम उसमें कुछ नहीं लिखते, सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके अंदर उसकी बॉडी लिखे, दैट्स ऑल। ओके, कोई डाउट? ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट पॉइंट वी कम टू द वेरिएबल। सो वेरिएबल हमारे जो बेसिक्स है, ये क्या है, हमारे डाटा स्टोरिंग यूनिट्स है। तो हमें प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है, जैसे अगर कोई हमारे कॉलेज में हमारे नाम की फाइल्स लगी होती है जिसमें हमारी फाइल्स में हमारा सारा डाटा इंसर्टेड है। फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर है 1 2 3, सो उस 1 2 3 रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक फाइल क्रिएट हुई है जिसमें उसके फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से लेके लास्ट डे ऑफ लीविंग द कॉलेज तक की सारी डिटेल्स होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल इट्स मार्क्स, his name, his personal details, and his co-curricular activity details and all that. So हम यहाँ पे वेरिएबल्स में भी वही स्टोर करते हैं, किसी की पर्टिकुलर किसी चीज़ की वैल्यू स्टोर करनी हो वो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नेम स्टोर करना है तो हम नेम में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस है, माय नेम इज डैश एंड आई एम डैश इयर्स ओल्ड। सो माय नेम इज हमारा वेरिएबल का नाम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखें मेगन वाला, तो नेम की वैल्यू है कि मेगन, तो उसके बाद एज जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू हुई है हमारी 20। सो द आंसर कम्स आउट टू बी माय नेम इज मेगन एंड आई एम 28 इयर्स ओल्ड। ओके, कोई डाउट, किसी को कोई क्लैरिटी? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डिफाइनिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स के हैं क्रिएशन के लिए, वैल कीवर्ड एंड वैर कीवर्ड। सो वैल कीवर्ड से हम वेरिएबल्स वो वाले क्रिएट करते हैं जिनकी वैल्यूज हमें चेंज नहीं करनी। ओके, फॉर एग्जांपल किसी का नेम है, वो थ्रू आउट द सेशन सेम रहेगा, तो हमें वो नेम चेंज नहीं करना, तो हम उसको लगाएंगे वैल कीवर्ड के साथ। और सेम चीज़ है वैर कीवर्ड। वैर कीवर्ड में बस ये मेन डिफरेंस ये है कि वैल्यूज को चेंज करने देता है।
जैसे कि एज, अब किसी की एज चेंज हर साल चेंज होगी, वो वो है वैर कीवर्ड के साथ हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so now we have to come to a part of defining a variable. So variable को define करने का part अब सीखते हैं। पहले हम लगाएंगे val और web, जो भी हम variable type लेने चाहते हैं। अगर हम उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम नहीं चेंज करना तो हम val लेंगे। फिर उसके बाद हम वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल काउंट, फिर उसका कोलन, फिर उसका डेटा टाइप बताएंगे। डेटा टाइप फॉर एग्जांपल इंट, इंट मतलब हम इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेंगे, जिसमें कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 -1 -7 ये होती है इंटीजर्स वैल्यू। फिर उसके बाद हमारा आएगा इक्वल टू, उसके बाद हमारा आएगी वैल्यू। सो वैल्यू 2 है फॉर एग्जांपल, जिसमें एग्जांपल में जो 2 वैल्यू है वो इस टाइम पे स्टोर होगी काउंट नेम में। हमने क्या कर, इसमें इंट टाइप की वैल्यू है। डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, करेक्टर। स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे कि किसी का नेम, जैसे कि मेरा नाम ब्रह्मज्योत है, वो एक स्ट्रिंग है। ओके, इंट में हमने बताया, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। फ्लोट में होती है डेसिमल वैल्यूज, डबल में भी डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, बट उसमें प्रिसीजन थोड़ी हाई लेवल की होती है एज कम्पेयर टू फ्लोट। तो फ्लोट का हमको डिफरेंशिएट करने के लिए फ्लोट में हम एफ लगाते हैं एट द एंड ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहीं पर डबल फ्लोट में रखना होता तो मैं वैल काउंट फ्लोट इक्वल्स टू 2 एंड उसके पीछे हम लिखते एफ। एफ का मतलब हो जाता कि वो फ्लोट वेरिएबल है। ओके, किसी को कोई डाउट? अंकित नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब यहाँ से हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो जैसे कि अब फन मेन फंक्शन में हम एंटर करते हैं, तो वहाँ पे हमने सेपरेट फंक्शन क्रिएट करा हुआ है, डिस्प्ले इंट्रोडक्शन। सो एक फंक्शन कॉलिंग का बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हम अलग से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो इसमें हमने फंक्शन इंट्रोडक्शन में अगर आ जाते हैं, तो हमने दो वेरिएबल, एक वेरिएबल लिए हैं वैल नेम मेघन, और दूसरा सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे वैल नहीं आएगा, वैर आएगा। सो वैर एज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, मेघन एंड एज। सो अगर हमने इनको प्रिंट कराना है वेरिएबल्स को, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एलन आई एम डॉलर साइन के साथ वेरिएबल का नाम एंड आई एम डॉलर साइन के नाम एज। ओके, ईयर्स ओल्ड। और जो हमारी आउटपुट है ये कुछ ऐसी आएगी। ओके, जैसे कोई यहाँ तक की क्लैरिफिकेशन? ओके, सो ये हम अभी फर्स्ट पार्ट से का अभी एंडिंग पार्ट पे आ गए हैं। सो यहाँ से कोमल टेक ओवर करेंगे और आप सबको। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। सो पुष्कर, हमें वहाँ पे बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू को प्रिंट कराना है। अंकित, कैन वी हैव द प्रीवियस स्लाइड प्लीज? क्योंकि अगर मैं वहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाऊंगा तो वो प्रिंट कर देगा हाई आई एम नेम एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। तो ये डॉलर साइन एक स्पेसिफिकेशन है कि कर रहे हैं, जैसे कि हम सी में करते थे डॉलर साइन के साथ डॉलर डी, सॉरी परसेंटेज डी और परसेंटेज सी, जैसे करेक्टर्स के लिए या इंट वेरिएबल्स वगैरह के लिए, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम। ओके, सो ओवर टू यू कोमल। A very good evening to everyone. So, before starting the second pathway of Unit 1 of our first day of Compose Camp, let me introduce myself. My name is Komal,
and currently I'm in second year pursuing Electronics and Communication Engineering from Government Engineering College Sekpura, and I am the GDC lead of Government Engineering College Sekpura. So thank you so much, Brahmjot. Now I'm going to show you like how to set up your Android Studio. So just hold a minute. I'm going to represent my screen. Okay. Can anyone tell me if my screen visible? Uh, it's not visible. Just wait for some time, for few minutes. I guess her network is lost. I guess she is here now. Komal, can you start?
You are host. Extremely sorry, guys. I have some very bad network issue. Okay. Like how to set up your Android Studio for creating an app. सो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप करें. सो फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे. सो या माय वॉइस और स्टिल ब्रेकिंग. I'm not able to share my screen. I don't know why. Brahmjot, if you are available, you can continue the session by yourself. Brahmjot. Okay. Ankit, next slide, please. Brahmjot, So Brahmjot, you have to use the pathways which is given us in the unit. So should I share? yeah, you should share the pathway. Okay, I will. Okay. I'm sharing the pathways. Wait a minute. Sorry for the interruption, guys. Little being hectic. Is this visible? Yeah, it's visible. Okay, Brahmjot, you can continue now. Brahmjot, are you able? Yeah, Ankit. Can we have the first module, please? Skip the video just. Okay. So first of all, हमें जो हमारा Okay, Brahmjot, leave it. I will be taking the session now. Okay. Okay, So, sorry for the hindrance, everyone. So, coming up to Android session, Android Studio. So,
anyone know about Android Studio? What is Android Studio? Let us know here. Everyone, anyone knows about Android Studio can share what is Android Studio. Okay, we can create app on it and we can get more answers. Yes, we work on it. We know how many of you worked on it. Android Studio is a platform where we create apps. Okay, so everyone is comfortable on Hindi, or should I speak in Hindi as well? Both okay, okay. So okay, हिंदी. तो हाँ ठीक है. तो बात है एंड्रॉइड स्टूडियो की. एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में मतलब मैक्सिमम बच्चों जिन्होंने काम किया होगा उन्हें पता होगा. तो बात करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में. तो एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है? एक तरीके से एक आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. जैसे कि बेसिकली यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, किस ईयर में होंगे मैं जान सकता हूँ? अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किस ईयर से स्टूडेंट्स हैं? थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो सभी को नॉलेज होगा कि एक कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में. जैसे कि सभी ने सी या पाइथन कोई भी एक बेसिक कुछ ना कुछ एक ऐसा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर यूज किया होगा जहाँ पे उन्होंने अपने कोड्स को रन कर कंपाइल किया होगा. जो भी लैंग्वेज हम यूज करने वाले होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, कोटलिन, जावा, फ्लटर, ये सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं, डार्ट, ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं. तो हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के पर्पस के लिए जो है एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करते हैं यूजिंग दीज ऑल लैंग्वेजेस. तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कोटलिन. तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम. तो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए तो फिर बेसिकली सबको पता है एंड्रॉइड स्टूडियो गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा. तो सबसे पहले जो हमारा वेबसाइट आता है developers.android.com, इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होंगे. तो हमारे पास रहा ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म यही ओपन होगा, जो हमारा वेबसाइट ओपन होगा. यहाँ पे हम डाउनलोड सिंपली करंट वर्जन जो एंड्रॉइड स्टूडियो का डॉल्फिन वर्जन है, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होंगी. वो जो है मैक का जो है कि जो भी फाइल यहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे. प्लस जिनके पास लाइनेक्स या क्रोम ओएस है, हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट ओएस आते हैं. ठीक है. तो पहला विंडोज, मैक्सिमम यहाँ पे विंडोज यूजर होंगे. मैं जान सकता हूँ कि किस टाइप के यूजर्स हैं? विंडोज, मैक, लाइनेक्स ओएस, सभी विंडोज. सभी आंसर करें ताकि पता चले स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड है. तो मेनली विंडोज की है. तो मेनली जो हमारे स्टूडेंट पास अवेलेबल हैं वो विंडोज के. ठीक है. तो फिर हमारे पास जो है अवेलेबल हो गया, क्या नाम, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो. फिर हम इंस्टॉल करने का चेक करते हैं. तो मैं इंस्टॉल करने का दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं. wait a minute, new folder, Flutter, Stockfish, Android Studio. तो मेरे स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके. सो जैसे हमारे पास जो है अवेलेबल है अपना exe फाइल.
तो फिर इसको सिंपली सबको इंस्टॉल करना पता है, बेसिक इंस्टॉल करने में कुछ हिंड्रेंस आ जाती हैं कभी कभी, तो उसको हम देख लेते हैं। Install the previous version, ओके ठीक है। No. तो सबने यूज़ किया होगा विंडोज़, तो मे बी मुझे पता है सबने एप्लीकेशन भी काफ़ी सारे इंस्टॉल किए होंगे, तो इंस्टॉल करने में मे बी इशू ना आए। Android Studio 1 सिंपली बेसिकली जो भी ऐसे नेक्स्ट करके ऑप्शन होंगे उसको हम सेटअप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। इतना सा वर्क है हमारा, सिंपल सा। लेकिन जो हमारा इशू आता है वो आता है पहला क्या नाम है, एंड्रॉयड स्टूडियो में एमुलेटर सेटअप करने की। तो एमुलेटर बेसिकली क्या होता है, सबको पता है एमुलेटर के बारे में? एमुलेटर के बारे में नहीं पता, तो एमुलेटर के बारे में बात करें तो एक मिनट में प्रेजेंटेशन मेरे पास होगी। ओके, एमुलेटर की बात करी तो ये हमारा एमुलेटर होता है। जैसे कि हम जो भी कोड लिखते हैं, उसको रन करके हमें क्या नाम है उसका एक आउटपुट चाहिए होता है। जैसे सभी ने सी, पाइथन जो भी लैंग्वेजेस में हमने वर्क किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको कंपाइल करते रन करते हैं तो हमें आउटपुट विजुअल होता है पॉपअप होके एक अनदर विंडोज में। सिमिलरली क्या होता है, जब एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम वर्क करते हैं तो एक तरीके से एक वर्चुअल हम क्या एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसके लिए एक डिवाइस हमें चाहिए होता है, जहाँ पे जो भी हम कोड लिखते हैं उस कोड को कंपाइल करके एक ऐप बिल्ड करके उसमें शो करने के लिए यूज होता है। क्योंकि अब हमारा सिस्टम तो विंडोज का सिस्टम है, तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब क्या होता है जो भी हमारा जो है एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं वो और एंड्रॉइड के लिए होती है। तो इस वजह से अलग से एक हमारे पास डिवाइस क्रिएट होता है, वर्चुअल डिवाइस, जिसे हम एमुलेटर कहते हैं, जिसमें जो भी हमारे सारे जो कोड्स लिखते हैं वो कंपाइल करके एक बंडल बिल्ड करके वहाँ पे इंस्टॉल करता है। ठीक है, एक तो वो अपने अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सेटअप करके दिखाता हूँ एक बार। तो जब एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से हमारे पास एमुलेटर का ऑप्शन आता है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। एक्चुअली सॉरी, मैं those projects, ओके। तो बेसिकली ऐसे कुछ लेआउट ओपन होगा, वहां से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट होगा उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास एक पहले से एक प्रोजेक्ट है, मैं तो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारे पास आता है एंड्रॉइड SDK। जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे हमें इंस्टॉल होने के बाद जब हम ओपन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, वहाँ पे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए एक्सेस मांगता है। उसमें कुछ अक्रॉस हमारे 600 to 700 MB यूज़ होगा। तो मे बी सभी अपना मतलब एक तरीके से वाईफाई यूज़ करना या फिर एक्स्ट्रा डाटा रिचार्ज कर लेना, ताकि जो है क्या होगा, जो भी इंस्टॉल करने में कोई इशू ना आए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो जो एंड्रॉइड SDK डाउनलोड होता है, SDK मैनेजर, तो जिसके थ्रू एंड्रॉइड SDK के थ्रू ही हमारा एमुलेटर स्टार्ट होता है। बिना एंड्रॉइड SDK के हमारा एमुलेटर रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रॉइड SDK ऑटोमेटिक डाउनलोडेड हो जाएगा। प्लस उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना एमुलेटर सेटअप करते हैं। ठीक है, एमुलेटर के लिए बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, टूल्स, यहाँ पे है डिवाइस मैनेजर। ठीक, तो जैसे कि डिवाइस मैनेजर आ गया, तो मेरे पास पहले से एक डिवाइस अवेलेबल है, बट आपको क्या करना होगा, क्रिएट डिवाइस करना होगा। ठीक, क्रिएट अ डिवाइस, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा आपके पास, विजिबल है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एमुलेटर हमारा
स्क्रीन Yeah, Ankit. ओके Screen is visible. ओके। सो बेसिकली एक हमारा ये सिस्टम, एक मिनट में देख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी जो भी स्टूडेंट्स के डाउट हो वो देखने में थोड़ी इशू हो रही है। तो Yes, I was saying to students that they can share in Q&A in question section, especially. Then we can answer those. आई थिंक नाउ विजिबल होगा। विजिबल है? Yes, Ankit, it's visible. ओके ओके। तो अभी हम क्या कर रहे थे, एक डिवाइस क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि हमने एंड्रॉयड एसडीके डाउनलोड कर लिया, क्योंकि जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे इंस्टॉल करने के बाद जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे, वहाँ से कुछ जैसे कि हमारे थीम क्या होगा एंड्रॉयड स्टूडियो का, थीम के बाद हम फॉन्ट्स क्या रखने वाले हैं, ऐसे बेसिक से कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसको हम सेलेक्ट करके फिर एंड्रॉयड एसडी को डाउनलोड करने की परमिशन हम मांगेगा। हम एंड्रॉयड एसडी के डाउनलोड कर लेंगे, फिर हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो रेडी हो जाएगा रन करने के लिए। वहाँ से हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे प्लस। उसके बाद क्या करना है हमें, मैंने यहाँ से टूल्स से जाना है, हमें टूल्स से डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। तो कुछ ऐसा हमारे पास ओपन होगा जहाँ पे डिवाइस मैनेजर में वर्चुअल फिजिकल करके ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करना है, क्रिएट डिवाइस करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन आएगा जहाँ से हम जो डिवाइस की डेफिनेशन, एक तरीके डिवाइस के नेम है, उसकी साइज क्या होने वाली है, रेजोल्यूशन, डेंसिटी, सारी चीजें दी रखी होंगी। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, जैसे टीवी टाइप के हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम जो भी एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं वो किस डिवाइस के लिए है, टेलीविजन है तो, लेकिन एंड्रॉयड, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही होगा, बट क्या होता है कि स्क्रीन वेरी करती है। तो जैसे कि एंड्रॉयड टीवी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ये इतने सारे इसकी साइजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग फोन्स हैं, वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, टैब जो है टैबलेट्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे पास जो है डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली जैसे एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो मुझे अच्छा मुझे एक नाम बताओ जो मैं डिवाइस क्रिएट करूँ, लेट मी नो। एंड्रॉयड स्टूडियो प्लेटफॉर्म 33 नहीं, मैंने अभी ओपन करके दिखाया था ना। मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। स्टूडेंट्स जो है सेव कर सकते हो कहाँ से तुम्हें डाउनलोड करना है, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। सो हियर इज द लिंक, यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कोई एक पिक्सल 4, ओके पिक्सल 4 है हमारे पास। तो क्या करते हैं, डिवाइस हमने सेलेक्ट किया, डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हमें एमुलेटर के भी साइज डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास कई सारे रिलीज नेम्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा जो एंड्रॉयड जो होता है फ़ोन होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर होती है, उसी तरीके से यहाँ पे टैबलेट हमने क्या नाम है, वहाँ पे डिवाइस का नाम सेलेक्ट किया, उसके एक तरीके से होती है हमारी डिवाइस सेलेक्ट होगी, बट उस डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर रन करने वाला है उसको हम सेलेक्ट करते हैं किस टाइप का सॉफ्टवेयर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डाउनलोडेड है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली डाउनलोड करें ना, मेरे पास डाउनलोडेड यहाँ पे आर। तो आर जो है रिलीज यहाँ पे इसका जो है एपीआई लेवल 30, अपने अकॉर्डिंग जो तुम यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एक फिर एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे तुम्हें अप्रॉक्स 1.5 GB के अक्रॉस डाटा चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी तो मे बी एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप करने के लिए यू कैन हैव एट लीस्ट 3 GB ऑफ डाटा, ताकि हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकें। क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते समय सबसे पहले एंड्रॉयड एसडीके आता है,
एंड्रॉइड एचडीके 5 to 600 MB के क्रॉस होगा। आफ्टर देन हमारा 1.5 GB के क्रॉस जो है हमारा ये जो है इमेजेस जो होती हैं यूज होने वाली होती हैं एमुलेटर में वो होती हैं, ठीक। उसको सेलेक्ट डाउनलोड होने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी नेम वगैरह होगा उसको डिसाइड करेंगे, फिनिश। ओके, तो बेसिकली हमारा जो है एक तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो हमने ये पिक्सल 4 क्रिएट किया था, तो पास i5 प्लस 8 GB रैम है, जिसके पास i5 प्लस 8 GB रैम है वो एमुलेटर रन कर सकता है प्रॉपरली, बट मे बी i3 वाले भी रन कर सकते हैं। बट क्या होता है कि प्रोसेसिंग लोड ज़्यादा हो जाता है, एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा हैवी एप्लीकेशन हो जाता है, वो थोड़ा हैवी प्रोसेसिंग मांगता है। तो i3 में मैं प्रेफर नहीं करूँगा तुम लोग एमुलेटर यूज़ करो। उसके लिए क्या कर सकते हो कि अपने फ़ोन में अबाउट फ़ोन में जाकर तुम्हारे पास एंड्रॉयड डिवाइस तो होगा ही, उसमें क्या नाम है अबाउट डिवाइस में जाकर के बिल्ड वर्जन करके एक ऑप्शन दिखता होगा, वहाँ पे 10 टैप करोगे तो एक डेवलपर ऑप्शन करके ओपन एक तुम्हारे सेटिंग में एक नया ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शंस करके, वहाँ पे जाना है तुम्हें डेवलपर ऑप्शंस में। वहाँ पे तुम्हें क्या करना है यूएसबी डिबगिंग मोड रिमोट से यूज कर सकते हैं ना, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करना है तुम्हें कि अपने तुम्हारे पास खुद का डिवाइस होगा एंड्रॉइड डिवाइस, वहाँ पे अबाउट फोन में जाना है, कंफर्टेबल ना हो एमुलेटर रन करने की, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 2 GB रिक्वायर, जैसे अपने अकॉर्डिंग जब एमुलेटर हम को रन करते हैं तो वहाँ पे हमसे एक्स्ट्रा से पूछता है कि कितनी GB रैम उसे हम एलोकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा उसे 2 GB 4 GB के अकॉर्डिंग हम डिवाइस को अपना रैम एलोकेट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा डिवाइस स्लो हो जाता है, तो ये इशू आ सकती है। तो मे बी मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सबको। सो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर वो पूछ सकता है, बाकी हमारे पास कुछ फिजिकल वे इज बेस्ट। हाँ, फिजिकल वे बेहतर रहेगा जिसके पास मे बी जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अगर लो है, वरना लैपटॉप में ही प्रेफर करना बेहतर रहता है एक तरीके से, क्योंकि रन टाइम पे तुरंत हमारा एक तरीके से शो करेगा, और फ़ोन भी बेहतर है बट थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो जान सकते हैं अभी उसको हम। बिल्ड वर्जन जहाँ पे तुम्हें मिलेगा उसको 10 टाइम टैप्स कर देना तो तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन मोड ऑन हो जाएगा। और अगर तुम्हें विजिबल हो एक्सेसिबिलिटी में वो एक्चुअली विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल होता है तो सेटिंग में सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मोड सर्च कर देना, तुम्हें अवेलेबल होगा, वहाँ पे जा करके तुम्हें क्या करना है यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन करना है। ओके, क्लियर है? ओके, सो अभी हम मूव करते हैं क्विज के साइड पे। तो सभी लोग क्विज के लिए रेडी हो? Is everyone ready for the quiz? ओके, सो सभी लोग जो है काहूट सर्च कर लेना, काहूट।
लिंक भेज दिया, ओपन कर लो। सभी के पास पिन पिन मतलब पिन एक्सेस मांग रहा होगा। एवरीवन जॉइंड? सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पिन अवेलेबल है, तो सभी जॉइन। सभी लोग देखते हैं कितने प्लेयर ज्वाइन करते हैं। वॉइस नहीं आ रही मेरी? ओके, एवरीवन कैन ज्वाइन सून। ओके, we are having more participants right now. Everyone join. Okay, I think we have reached our limit. uh, I'm एक session. Wait, let me check something. I'm starting for these 20 members. After that, I will create another one for everyone. Okay, wait. Here is whoever joined can start their quizzes. Until then, okay. For the next question, actually, we had some issue here. We had only limit for 20. We will check for this. सभी लोग अवेलेबल हो तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ ताकि सभी ज्वाइन कर सकूँ। अगर लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अगर सभी लोग अवेलेबल हो तो मैं ट्राई करूँ ताकि सभी लोग ज्वाइन कर पाओ, वरना हमारा मज़ा खराब हो जाएगा। अवेलेबल हो सभी? ओके। लेट अस ट्राई वंस मोर। अगर ज्वाइन कर सकते हो तो फिर ज्वाइन करो, अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो
Okay, I am starting the quiz now. Okay, so here starts the quiz for both. So both groups were getting different questions, so they can answer according to their question. Okay, now let me. क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन अपनी, ताकि सभी लोग जो है, तो विजिबल है मेरी स्क्रीन। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये स्टार्ट होता है। सो चेक करते हैं स्कोर बोर्ड। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, we have few more questions. So Gupta ji and Yashika were doing well. Actually, they are doing great. So we are having our next question. Or are everyone enjoying the quiz? Okay. Okay. Next question. Those who are not able to join today's question quiz, be ready to participate for the next quiz, which will be held on second session. जो हमारा सेकंड सेशन है 30th ऑफ सितंबर को होगा। तो उसकी भी लिंक जल्द ही आप सबको मिल जाएगी, तो सभी लोग रजिस्टर कर लेना, ताकि सेकंड सेशन से सभी जो भी हम लाइव कोडिंग ट्राई करेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन था, इस वजह से थोड़े बहुत इशूज बीच में आ गए, बट मैं सेकंड सेशन से लाइव कोडिंग होगी, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स और जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें करते हुए दिखाया जाएगा, कोडिंग प्लस। ठीक है, और एट द एंड इसी तरीके से कुछ सरप्राइज क्विज रखे जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि को टेक्नोलॉजी से हटके भी कुछ चीज़ों की नॉलेज है। एज सारी क्वेश्चंस यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें ही हैं, बट रादर देन एक्स्ट्रा चीज़ों की नॉलेज कौन रखता है, वहाँ से हम ये भी चेक कर लेंगे। सो एवरीवन आंसर फास्ट, क्विक। So we have second last question here. Let me change the screen actually.
Okay. So we are going to have our last question. So prepared everyone. Puspa is rocking. So everyone ready for the last question? Sorry, second last. We have a second last question. Sorry. Okay. So we are going to have our last question. Just the last question is on your screen. We had simple questions for you, so we were able to. So let me know in the chat box. सभी लोग रिजल्ट के लिए रेडी हैं यहाँ पे? जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ओके रिजल्ट सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ कि रिजल्ट के लिए सभी लोग रेडी हो. ओके एवरीवन, let me know everyone. Okay, so here's the podium. So here we have our winners. So Muskan and Yashika are the winners for the quiz, and the second runner up Satyam Rishabh. You all enjoyed the session. So सभी लोग बता सकते हैं कि क्विज कैसा रहा सबका. Okay. Once more. Okay, Pratham, we will have once more in our second session. Be prepared for the next for the next session, and we will surely have more quiz like this. And thank you for the today's session. If anyone has any question or anything, can let me know in the chat box, so we will able to answer your question. Anyone? How to contact you? Uh, Basically, I am from GDSC, Raj. Search for the community in the on the Google Developer Student Club, Rajkot Engineering College Bijnor. From there, you will get me as a lead. You can contact me from there as well. Okay. Anyone has more question? Hope you guys enjoyed today's session, and I would like if you all uh, join for 30th September and uh, come and learn about Jetpack Compose. Today is a basically introduction. आज का जो सेशन था वो basically introductory सेशन था, तो उतना खास कुछ मज़ा नहीं आया होगा, but I ensure that from the second session you will be enjoying lot more. आज थोड़ा सा बस कह सकते हैं छोटा सा ट्रेलर था क्विज और प्लस सारी चीज़ों का. कल से हमारी लाइव कोडिंग स्टार्ट होगी जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स और सारी चीज़ों को And yeah, you need to be consistent with us. We will be having 3 more events from here, and you will be learning a lot from that, because you would be seeing that we are having quiz and many things, and we will be having live coding and like those things for making it interactive.
and you can ask us questions and we will be answering those. So yeah, thanks a lot, everyone, for attending the event and making this event really great. You are the key for the event, so thanks a lot. And thanks to our leads and facilitators for giving us the understanding and everything about the Compose camp. Thanks a lot. Okay. Some students were asking for LinkedIn IDs. So Okay, we will be sharing those. Sure. And from next time, please should ask questions in the Q&A section. Uh, it is for that purpose only. We are not able to see all the things in the general queries and all. So that you should remember that. That- Yeah, thanks a lot, everyone. Okay, I guess that. So yeah, all can leave from here, and we can also leave, I guess.